Welcome again to SPPS School, and today I am going to give English mantra that would be helpful for others and you too, and it will help in enhancing your vocabulary, speaking and writing and everything. And there is only one mantra, okay, which you can chant easily, and definitely it would be accessible and applicable in your life, surely. So English language is mostly speaking language in the world. It's become an important language in the world because so many things are available in internet in English language. So you'll have to learn it, no matter where you come from and whether you are interested or not. It does not matter, but you'll have to learn the language to speak. Any language you can learn with the same way that I'm going to express today, and you must ensure you are interested in learning. If you are not interested in learning, there is no any ways which will be effective for you, and no matter how much time you have given to learn the same. So everything learn by interest. If you are interested, like today I'm making videos because it's my interest, okay. I love to make videos since 2004, so still I'm making so many videos about dance, about teaching, about experience, about methodology, about everything. So it's come through experience only. So once you are experienced in any way, then definitely it will come through your words, okay. So we are going to tell you about best way that would be effective and learning for everyone. So there are only two ways to learn English. There is no any tips and tricks. There is no any tips and tricks. If somebody is telling you these are the points, if you apply them into your life, then definitely you would be speaking English language fluently. First of all, there is no any fluency, okay. It's come only through experience. By experience, whatever you faced, whatever your life been through, that will come automatically. Let's say if you speak in Hindi, then definitely whatever comes and came in your experience, that you would easily define in your words, because it is your experience and you can easily transfer to others. So everything is based on the experience, and you will surely be speaking in English language if it is in your experience. Whether it is in Hindi or English, it does not matter, or any language. But surely if you are interested in learning, then definitely it will come automatically. So the first way is, you can't learn any language overnight. You can't learn any language overnight. Still I'm learning, and everybody is learning. Nobody is perfect. If you are thinking that, many of you might be thinking that he is perfect or she is perfect in English language, there is no any perfection. Let me clear your doubt. There is no any perfection in the world. Everybody is learning day by day, because everything is being updated and people are keep trying to make it shorten. So you will have to be aware about shorten words also. So every day is to learn. So there is no perfection, okay. And yeah, definitely I'll speak in Hindi so that you can understand it easily, and few things I will elaborate in English because it's important to understand. So okay, तो देखिए, आपको you will have to work for 1000 hours. Just write down anywhere. You will have to work 1000 hours. There is no any shortcut. There is no any tips and tricks. You will have to work for 1000 to be master. And if you want to be expert, not excellent. If you want to be expert on the same thing, that would be helpful for others. So you'll have to spend 10,000 hours. So it's mean you'll have to spend 1000 hours to be master and 10,000 to be expert. There is no other shortcuts. So okay, define it into hours. Okay, if you spend 2 hours in a day, it's mean you spend 60 hours in a month.
It's mean you'll have to take more than 7 to 8 years to learn around what is the calculation, 720 hours in a year. Okay, it's mean you'll have to spend 2 years to learn English language, any language. And if you spend 10 hours a day, you can learn in 3 months. You know, many of you have taken classes learn English within 90 days. हम में से बहुत लोगों ने भी ये 90 days का क्लास लिया होगा. You will be learning, you will be speaking within 90 days. तो उन कोर्सेस में यही कहा जा रहा है कि अगर आप 10 घंटे देते हैं एक दिन में, यदि आप 10 घंटे देते हैं, अगर आपको जल्दी सीखना है, बहुत देर में सीखना तो 3-4 साल लग जाएंगे, वो भी अगर कंसिस्टेंटली आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो विद द सेम इंटरेस्ट, विद द सेम लैंग्वेज. तो आप 10 घंटे अगर पर डे देते हो तो इसका मतलब 3 से साढ़े 3 महीने में आप सीख लोगे. ओके, अच्छे तरीके से. और यही चीज़ें हैं कि आपको कोई मंत्र नहीं है, इसका कोई भी मंत्र नहीं है. देयर इज़ नो मंत्रा. ओके, फिर दो चीज़ें हैं. अगर आपको लिखना सीखना है तो यू विल हैव टू रीड, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू स्पीक सो यू विल हैव टू स्पीक. देयर इज़ नो अदर वे. लिसन मोर टू स्पीक मोर, रीड मोर टू राइट मोर. देखो, दोनों अलग चीज़ें हैं. स्पीकिंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड राइटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट. राइटिंग should be professional because you know people are keep asking you proficiency, because if you are proficient in any language then definitely it would be easier to work on and it would be easier to display the picture that you made image into your mind. So that is very clear. Okay, and आपको अब 2 चीज़ें जो हम इसके थ्रू बता रहे हैं कि देखिए, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. मैंने बहुत सारे टीचर्स से इस बात को क्लियर किया, बहुत अच्छे जो अच्छा इंग्लिश लिखते हैं, मैं उनसे भी अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डेली अपडेट हो रही हैं चीज़ें. तो आपको एक ही सूत्र है, आपको गाइडेंस चाहिए और डेली गाइडेंस चाहिए. आपको एक दिन भी अगर मिस कर दिए तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हो. तो डेली गाइडेंस चाहिए और डेली प्रैक्टिस चाहिए. यदि आप कुछ दिन भी बोलना बंद कर देते हैं तो आप कई चीज़ें भूल जाओगे. और इसका सबसे बेस्ट फार्मूला है कि वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो सब बोल रहे हैं. वोकैबुलरी याद करने का सबसे अच्छा मंत्र है, इसका मंत्र है, यदि आप एक दिन में 10 वोकैबुलरी याद करते हो तो आपको एक ही याद रहेगी. अगर आप एक दिन में 100 याद करते हो तब भी आपको एक ही याद रहेगी. तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. यदि आप 10 भी याद करते हो तो उसमें से एक याद होगी और एक को 10 बनाया जा सकता है. ओके, वो कैसे बनाते हैं? जैसे मेक, तो मेक इट, मेक होता है बनाना, मेक इट मतलब इसे बनाओ. मेक इट डन, इसे करो. तो इस प्रकार आप 10 बना सकते हैं एक को. तो मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आप 100 को सीख सकते हैं तो इट्स ग्रेट. बट अगर आप कम एफर्ट लगाना चाहते हैं और अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं तो आप 10 याद करिए, एक याद रहेगी. और ऐसा ही डेली करिए, डेली एक याद होगी. इसका मतलब महीने में 30 याद हो जाएंगी और साल में आपको 360, और 360 काफ़ी हैं. मतलब ऐसे ही आप डेली याद करते रहोगे. और ज़रूरी नहीं कि जो 10 में से एक ही याद होगी, एक लंबे समय तक याद होगी. तो 2 प्रकार की मेमोरी होती है हमारे यहाँ, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट. तो आप जो रिपीट करते हो, जो रिकॉल करते जाते हो, वो परमानेंट स्टोरेज में जाता है, और जो एक होता है वो टेम्परेरी में जाता है. तो ब्रेन जो है वो हमको ये पूछता है कि अगर ये इंसान बार बार इन शब्दों को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसको परमानेंट स्टोरेज में भेजना है. और यदि ये कभी कभी बोल रहा है या फिर कभी कभी इसको याद कर रहा है तो इसका मतलब इसको टेम्परेरी में रखना है. तो 2 प्रकार की मेमोरी है, उसमें आपको किस मेमोरी में चीज़ें डालनी है वो आपके ऊपर है. तो रिकॉल करना पड़ेगा. यू हैव टू रिकॉल मोर देन 50 टाइम्स, मतलब इन अ डे. अगर आप 50 बार उन चीज़ को रिपीट करते हो तो उसमें से 10% आपको याद होगा, 100% फॉर लॉन्ग टाइम. एंड इसमें 2-3 चीज़ें और समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम मिस्टेक करते हैं. हम सोचते हैं कि हम केवल किताब पढ़ लेंगे और बनने लगे, मतलब कुछ भी पढ़ा और लिखते बनने लगेगा, ऐसा नहीं है. ग्रामर्स रूल्स जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत. और आपको सबसे अच्छी चीज़ होती है टैक्टाइल मेमोरी. आपको टैक्टाइल मेमोरी तभी आएगी जब आप देखकर लिखोगे, तो आपकी मेमोरी जो है बनती जाएगी कि ये चीज़ें मैंने लिखी और ये चीज़ें हुई. तो लिखने के लिए आप किसको दिखाओगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम. स्टिल आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई डोंट नो हु इज़
द एक्सपर्ट टू गाइड ऑन। तो हम लोग SPPS स्कूल के थ्रू ये इस चीज़ का, इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि आपने जो भी लिखा है वो किस हद तक सही है और उसमें क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं, परफेक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट, सबके लिखने का अलग अलग तरीका होता है, बट उसको बेटर वे पे कैसे लिखा जा सकता है वी कैन टेल यू, बिकॉज आवर टीम इज़ वर्किंग हार्डली ऑन इट। ओके। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठीक है आपको प्रैक्टिस तो करना है, सबने सब बता दिए कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब फ्रेंड्स से आप बात करते हो तो वो कहते हैं इंग्लिश में बात करो, है ना, ज़्यादा होशियारी नहीं, ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों की इन समस्याओं को सबसे पहले तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए, आप अपने रिलेटिव से बात करिए, अपने घर में थोड़ा बहुत इंग्लिश का उपयोग करिए। मैं केवल इस लैंग्वेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज के लिए जो आप सीखना चाहते हैं, सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी राइट नाउ। सो it's very important how you communicate to people, okay, and what is easier to understand to them, okay, because once you made them understood, then definitely they would be doing the same things and they will apply into their life. So that is easy part of saying. So that's it. हमारे पास जितना हो सकता है हम प्रयास करेंगे अफोर्डेबल चीज़ें आपको दें, और यदि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप अराउंड द वीडियो, आई थिंक अंडर दिस वीडियो वी हैव गिवन लिंक, यू कैन फिल इट एंड आप वहाँ पे डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी टीम के साथ। कोई भी आप लिखने में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पीकिंग भी। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पर सारी देखिए, कुछ चीज़ें पेड होंगी, कुछ चीज़ें नॉन पेड हैं, तो वो आप देखिएगा कि आपको किस तरह का कन्वीनियंस है ना, ये आप तय करेंगे कि बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड एज पर योर कन्वीनियंस। इफ़ यू वांट टू हायर समवन फॉर 30 minutes 1 hour, then definitely you'll have to pay for him or her. And if you are unable to pay that amount, which is 1 rupee, okay, education in 1 rupee, so we'll look into it, okay। तो चीज़ें ये क्लियर हैं कि देखिए, आपको स्पीकिंग चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको पार्टनर चाहिए, और पार्टनर हम देंगे, ओके। ये पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। आपको लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मटेरियल भी हम बता देंगे यदि आपके पास नहीं है तो, और आपको पढ़ने के साथ लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा गाइड कौन करेगा ना, क्या लिखा है। तो उसके लिए देखिए प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम लगता है विच इज़ पेड, पर कुछ मिनट्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं। यदि आप 2-3 सेंटेंस डेली लिखते हैं, मान लीजिए 50 वर्ड्स के अंदर, तो कोई भी आपको गाइड कर देगा ईजिली, और फिर आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। SPPS स्कूल इज़ गोइंग टू प्रोवाइड हु आर वॉचिंग आवर वीडियोज़ राइट नाउ। सो हम 2 चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड टू गेट, क्योंकि देखिए ज्ञान देना इट्स ईजियर सेड देन डन। तो ज्ञान देना बहुत आसान है, पर उसको उतारना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू नो, आई हैव थॉट सो मैनी थिंग्स बट I am unable to apply everything into my life, so it's very difficult to understand and it's very difficult to make it done as quick as I think I should do, but it's okay, it's fine। तो 2 चीज़ें हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिस के लिए हम पार्टनर देंगे, कुछ पेड हैं, कुछ नॉन पेड हैं, एज पर योर कन्वीनियंस आई अर्लियर मैंशनड। एंड दूसरी चीज़ है, आपको राइटिंग के लिए हम प्रोविज़न देंगे कि आप यदि आप 50 वर्ड्स के अंदर अगर आप उसमें गाइडेंस चाहते हैं प्रूफ रीडिंग का, तो डेफिनेटली इट इज़ इन मिनिमम अमाउंट, इट्स मीन एडुकेशन इन 1 रुपये। सो डेफिनेटली हम आपको उसमें मदद करेंगे, हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी। और हमारा जो SPPS स्कूल का सबसे बेस्ट चीज़ है वो है एडुकेशन इन 1 रुपये। तो कोई भी इसको सीख सकता है, कोई भी इसको कर सकता है, बस आपको एक चीज़ करना है, वो प्रोसेस है, वो आपको अंडर दिस वीडियो वी हैव गिवन अ लिंक एंड यू विल हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड सून वी विल रीच टू यू एंड आवर टीम विल स्पीक अबाउट एवरीथिंग। तो आपको ये चीज़ें तय करना है कि आपको फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद आपको साउट फॉर द सब्जेक्ट, आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है, आपको उसको फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस पढ़नी है,
और उसके बाद आपको एग्री करना है। ओके, फिर बाकी की प्रोसेस आपको फॉर्म फिलअप के बाद बता दी जाएंगी। और हमारा एजुकेशन 1 रुपये से स्टार्ट होता है, विच इज़ वेरी मिनिमम इन द वर्ल्ड। आई थिंक कोई स्कूल नहीं होगा, फ्री होगा। फ्री का ज्ञान तो आपको पता ना, जो फ्री में देता है फिर बाद में आपसे वसूलता भी है। तो यहाँ पे वो वाला काम नहीं है, है ना। फ्री देकर पहले फंसा लो फिर उससे पैसे ऐंठ लो, ये ऐसा काम नहीं है इधर पे। हम इसलिए 1 रुपया मिनिमम लाए हैं कि अगर आप 1 रुपया भी देते हो किसी को तो 100 बार सोचते हो, तो इसलिए हमने मिनिमम 1 रुपया रखा है। मैक्सिमम तो फिर आपकी कन्वीनियंस है, आप जितना आराम से सीखना चाहते हो, जितना कंफर्टेबल होकर सीखना चाहते हो, उसके पैसे लगते हैं, ये सब जानते हैं। तो आज का मंत्रा था प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए पार्टनर, और पार्टनर है SPPS स्कूल। That is, there is no other mantra, there is no any other tips and tricks. थैंक यू। आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। और यदि आप रियली इस बड़े से ऑब्स्टिकल को आप हटाना चाहते हैं या इस प्रकार की हिंड्रेंस को आप फेंकना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल रीच टू द एडमिशन फॉर्म एंड यू विल फिल दैट फॉर्म एंड विल सेंड टू अस, एंड डेफिनेटली with 100% accuracy will reach to everyone, so that everyone can get educated. And this is our mission, this is SPPS school mission, is because we want to reach to everyone in 1 rupee, because free is for frame and frame is just fencing. So we do not want you to frame in any structure, in any kind of obstacles. So that's why it is in 1 रुपया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और भी अधिक जो भी जानना होता है, और यदि आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो आप फॉर्म के थ्रू भी आप जान सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन वे टू रीच टू आवर टीम, दैट इज़ ओनली फॉर्म। यू विल हैव टू फिल फॉर्म बिफोर वी गेट आस्क्ड एनी क्वेश्चन। ओके, आपको यू विल हैव टू फिल द फॉर्म। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू सब्जेक्ट्स। थैंक यू।